Hello everyone, I'm Ishit Shah from Dolphin Academy. We are starting with the chapter number 1, real numbers. We are starting with this just introduction of the numbers. First, natural number. It is starting from 1, 2, 3 up to infinite. It is represented by capital N. Then whole numbers represented by W, and it is starting from 0, then 1, 2, 3 up to infinite. Then integers that represented by Z, negative numbers, 0 and positive numbers. Then rational numbers, that is Q, that is positive integers, positive fractions, negative integers, negative fractions. Means we can represent it in the form of P by Q, where Q is not equal to 0. That is your rational numbers. Then irrational number, we cannot represent it in the P by Q form, or also root 2, root 3, root 5 are irrational numbers. So the group of rational and irrational numbers are called real numbers. Natural number, whole number, integers, rational numbers. This is irrational number. Group of rational and irrational number is called real number. That is called real number. Clear? Okay. One more thing. The values of natural number, that is already considered in whole number. So N is a subset of W, and W is a subset of Z. Z is a subset of Q, and Q is a subset of real numbers R. Real numbers that represented by R. Clear? Means R के अंदर क्या जाएगा आपका पूरा सब ये रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर वो सब आ जाएगा. दैट इज योर रियल नंबर R. ये हो गया हमारा नंबर का सिर्फ इंट्रोडक्शन. अभी हम मेन चैप्टर स्टार्ट करते हैं विथ यूक्लिड डिवीजन लेमा. Euclid division lemma, given positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying a equal to bq plus r, where r is between 0 and b. इसको हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं. जो डिवीजन लेमा यूक्लिड ने दिया है, लेमा मीन्स कोई एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसका हम यूज करते हैं फॉर प्रूविंग सम अनदर स्टेटमेंट. Lemma means proven statement that is used for proving some another statement. That means lemma. Okay. So Euclid division lemma, that is given positive integer a and b, there exist unique integers q and r satisfying a equal to bq plus r, where r is between 0 and b. 0 लेस देन और इक्वल टू आर लेस देन बी मीन्स आर की वैल्यू 0 हो सकती है बट आर की वैल्यू बी पॉसिबल नहीं है. मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं आगे. यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन दिस लेमा. मीन्स यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या यूज करेंगे हम? दिस डिवीजन लेमा यूज करेंगे. उसके बेस पे आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है. Euclid division algorithm is a technique to compute the highest common factor, HCF, highest common factor. It is also known as GCD, greatest common divisor. HCF को हम क्या बोल सकते हैं, और HCF को हम बोल सकते हैं GCD, greatest common divisor. So Euclid's algorithm is a technique to find HCF of two given positive integer. उसके लिए हम Euclid's का मेनली यूज करेंगे. तो अभी यूक्लिड डिवीजन लेमा जो था कि ये दो इंटीजर है, कोई अनदर इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाई कर रहा है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वो सब क्या था वो हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं. कि जैसे मैं 15 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, 2 7 जा 14, माइनस करूंगा तो एक रिमाइंडर बच गया. तो यहाँ पे 2 को हम बोलेंगे डिवाइजर, 15 हो गया डिविडेंड, 7 हो गया कोशंट, एंड 1 हो गया रिमाइंडर.
तो 15 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 15 डिविडेंड इक्वल्स टू 7 2 जा 14, 7 इंटू 2 14 प्लस 1 रिमाइंडर, मीन्स डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई विथ क्या है ऊपर, कोशंट, डिवाइजर मल्टीप्लाई विथ कोशंट प्लस रिमाइंडर. सो 15 इक्वल टू डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशंट 7 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 1. डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर 1. क्लियर. तो अगर मैं ए बी क्यू आर के टर्म में लिखूं तो क्या था, ए डिविडेंड, उसको मैं डिवाइड कर रहा हूं बी से, तो बी हो गया डिवाइजर, क्वोशंट आ रहा है क्यू और रिमाइंडर आ रहा है आर. सो ए इक्वल टू डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट, डिवाइजर बी क्वोशंट क्यू, बी क्यू प्लस रिमाइंडर आर. ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर आ गया, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. क्लियर. ओके. अभी ऑलवेज हमारा जो यहाँ पे रिमाइंडर है दैट इज बिटवीन 0 टू b. अगर मैं यहाँ पे 14 डिवाइड बाई 2 कर रहा हूँ, 2 7 जा 14, रिमाइंडर 0 आ गया, तो मैं r को लिख सकता हूँ 0 और लेस देन इक्वल्स टू r की वैल्यू 0 हो सकती है. बट अगर 15 डिवाइड बाई 2 किया तो क्या आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया. चलो वैसे मैं 5 डिवाइड बाई 2 कर रहा हूँ, 2 2 जा 4, अगेन रिमाइंडर 1 आ रहा है. 14 डिवाइड बाई 3 किया, 3 4 जा 12, रिमाइंडर क्या आ रहा है 2. मीन्स जिससे आप डिवाइड कर रहे हो डिवाइजर से बड़ा रिमाइंडर पॉसिबल नहीं है. तो रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन बी. बी दैट इज योर डिवाइजर, बी क्या है हमारा डिवाइजर. डिवाइजर से ऑलवेज रिमाइंडर आपका क्या होगा, कम होगा, उससे बड़ा पॉसिबल या उसके जितना पॉसिबल नहीं है. रिमाइंडर कैन नेवर बी इक्वल टू और ग्रेटर देन बी. इट इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड b. रिमाइंडर 0 पॉसिबल है, सो 0 लेस देन और इक्वल टू b एंड लेस देन आएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, लेस देन b. रिमाइंडर इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड b. बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, ये आपको याद रखनी है. आगे सब में हम ये चीज़ यूज़ करेंगे, आज ही यूज़ करेंगे, तो अच्छे से ये समझ लो. यहाँ पे वीडियो पॉज करो, पूरा जो लिखा हुआ है वो अच्छे से समझ लो एक बार, फिर आगे का वीडियो देखना. ओके गाइस, चलो करो वीडियो पॉज. Next example, use division algorithm to find HCF of 455 and 42. यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना है. उसके लिए पहले मुझे ऐसे एक लाइन साइड में रफ के लिए बना देना है. कौन सा बड़ा है वो फाइंड करना है. 455 इज ग्रेटर देन 42. सो 455 को मैं डिवाइड करूंगा, 455 दैट डिवाइडेड बाय 42. 455 को मैंने डिवाइड किया 42 से, 42 1 जा 42, रिमाइंडर क्या बचा 3, ऊपर से आया 5. डिवाइड होगा नहीं होगा, तो यहाँ पे मुझे रखना पड़ेगा 0. यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा 0. ओके, सो आपका रिमाइंडर बच गया 35. अभी आप वो याद करो, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. सो डिविडेंड 455 इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट 42 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर 35. ऐसा लिख सकते हो आप. ओके, अभी यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम यूज करते, ये 42 को मैंने शिफ्ट कर दिया इस साइड और ये 35 को शिफ्ट किया मैंने यहाँ पे. नाउ 42 डिवाइड होगा किससे 35. सो 35 1 जा 35, रिमाइंडर बच गया 7. तो 42 इक्वल टू 35 इंटू 1, 35 इंटू 1, रिमाइंडर क्या आ रहा है 7. अभी 35 को इस साइड शिफ्ट करो, 35 7 यहाँ पे शिफ्ट हो गया. 35 को 7 से डिवाइड करो, 35 डिवाइड बाई 7, 35 रिमाइंडर 0 मल्टीप्लाई बाई 5, रिमाइंडर इज 0. लास्ट आपने किससे डिवाइड किया, लास्ट हमने डिवाइड किया 7 से. जिससे आप लास्ट डिवाइड कर रहे हो मीन्स आपका जो लास्ट डिवाइजर, लास्ट आपका जो डिवाइजर है 7, वही आपका क्या हो गया HCF. कई स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखते हैं HCF 5 लिखते हैं. 5 HCF नहीं होगा. जिससे आप लास्ट डिवाइड कर रहे हो, किससे डिवाइड किया मैंने 7 से,
तो 7 हो गया आपका HCF। ओके, एक और सम करते हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड HCF ऑफ 4052 एंड 12576। पहले आपको देखना है कौन सा डिजिट बड़ा है, तो वो तो आपको पता होगा 12576 इज ग्रेटर देन 4052। सिंपल एक लाइन बना दो, कुछ और नहीं सोचना है, जो बड़ा डिजिट है इसको इस साइड लिख दो 12576 इक्वल टू करके 4052 लिख दो बस, इनटू एक ब्लैंक प्लस ब्लैंक, बस ये दोनों ब्लैंक आपको फिलअप करना है। इन दोनों का डिवीजन करो, डिवाइडेड बाय 4052, 12576 डिवाइड बाय 4052, तो ये 12,000 अप्रोक्स है और 4,000, तो मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, 6 15 1 4 नहीं 1, ये प्रॉपर लिखा नहीं, 5 के नीचे 1 आएगा, 12576 उसको मैंने डिवाइड किया 4052 से, तो आ रहा है 6 12156 आएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करो, 420 रिमाइंडर आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स 3 एंड 420, सिंपल है। अभी सिर्फ इसको आपको शिफ्ट करना है, ये शिफ्ट होके आ जाएगा 4052, ये शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा 420, अगेन 2 ब्लैंक बना दो, ऐसे एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, जस्ट समझने के लिए। अभी इन दोनों का डिवीजन कर दो, डिवाइड बाय 420, डिवीजन कर दो। आपको कैसे करना है, चलो 420 और 4052 किससे डिवाइड होगा पता नहीं है, तो मैं पहले चेक कर रहा हूं किससे, जैसे मैंने ले लिया 420 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, 10 2100 आया, 2100 से बड़ा है, हाँ, मतलब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से किसी बड़े वैल्यू के लिए। तो मैं अभी मल्टीप्लाई कर रहा हूं 420 को 9 के साथ, 3780, ओके, सो 9 आ गया, 3780, रिमाइंडर बच गया यहाँ पे 27 272, तो लिख दो 420 इंटू 9, रिमाइंडर आ गया 272। समझ में आ रहा है? चलो आगे इसको शिफ्ट करते हैं, 420 शिफ्ट हो गया, 272 शिफ्ट हो गया, 420, ये सब आपको रफ में करना है, इसके नीचे कुछ नहीं करना है, अभी जगह नहीं है और समझाना है मुझे, इसलिए मैं कहीं पे भी कर रहा हूं, आपको ऐसा नहीं करना है, एक ऐसे लाइन बना के उसके अंदर ही सारा रफ वर्क करना है। जो आपका ये फेयर वर्क है वो फेयर ही दिखना चाहिए, उसमें कुछ ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं आना चाहिए, ऐसा भी आप नहीं कर सकते, ध्यान रखना। 272, या फिर आप लास्ट में रफ वर्क करो तो भी चलेगा, 420 डिवाइड बाय 272, तो 272 2 जा 544 हो जाएगा, इससे बड़ा हो गया तो 1 से होगा। आपको सब्ट्रैक्शन आता होगा, होप सो। 148 बच गया, तो 1 से डिवाइड कर रहे हैं 148, अगेन शिफ्ट करेंगे हम, 272 आएगा और यहाँ पे 148 आएगा, तो 272 इक्वल्स टू 148 इंटू ब्लैंक बना दिया और यहाँ पे हमारी लाइन तो है ही, तो 272 डिवाइड बाय 148, तो 148 1 जा 148 ही होगा, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका, ये 12 6 4 2 124 रिमाइंडर आ गया। अगेन इसको शिफ्ट कर दो, 148 124 1 जा 124, तो 148 में से 124 निकल गया, रिमाइंडर आ गया 24। अगेन शिफ्ट करो, 124 इक्वल टू 24 इंटू, सो 124 डिवाइडेड बाय 24, 124 डिवाइडेड बाय 24, जो 4 5 जा 120, रिमाइंडर आ गया 4। अगेन शिफ्ट कर दो, 24 इक्वल्स टू 4 इंटू 4 6 जा 24 प्लस रिमाइंडर
0, ऑलवेज रिमाइंडर आपका 0 आएगा। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कर रहे हो, ऑलवेज रिमाइंडर 0 आएगा। लास्ट हमने किससे डिवाइड किया? 4, उसके ऊपर ऐसे बॉक्स बना देना है, उसके बाद लिखना है HCF। किसका HCF फाइंड किया हमने? 4052 एंड 12576, उसका HCF क्या आ गया? 4। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो HCF फाइंड करने की मेथड आपको पता चल गई यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। इंपॉर्टेंट, 2 मार्क के लिए ऐसे इक्वेशन पूछते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। तो ऐसा हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो अगेन वही रिमाइंड करना पड़ेगा हमें, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं तो इसको लिखना कैसा है? अज्यूम A is any positive integer, A is any positive integer, okay, and B is equals to 2। क्यों मैंने 2 लिया? बिकॉज मुझे 2q plus 1 लाना है, सो B is equals to 2। तो अगर मेरा डिवाइजर 2 है, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, आपका रिमाइंडर b से बड़ा नहीं हो सकता। सो योर रिमाइंडर इज बिटवीन दिस, सो योर r इक्वल टू 0 एंड 1। 2 तो पॉसिबल नहीं है। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो इसमें वैल्यू रखते हैं a इक्वल्स टू b मीन्स 2 q प्लस r, रिमाइंडर इज 0। a इक्वल टू q प्लस रिमाइंडर इज 1। तो हो गया a इक्वल टू q, a इक्वल टू q। सो हियर a इज डिविजिबल बाय 2, a इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। ऐसा लिखना है यहाँ पे, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। पूरा स्टेटमेंट आएगा यहाँ पे, बिकॉज वो 2q के फॉर्म में आ रहा है, बिकॉज वो 2 से डिविजिबल है। 2q प्लस 1, सो a इज नॉट डिविजिबल बाय 2। अगर 2 से डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स वो ऑड नंबर हो गया। सो एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म 2q प्लस 1। एवरी positive odd integer is of the form 2q plus 1। क्लियर? ऐसे आप लिख सकते हैं। हो गया प्रूव। एक और सम करते हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1 और 4q plus 3 where q is some integer। Same answer, assume a is any positive integer and b हमें क्या कंसिडर करना है? 4। तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? r इक्वल टू 0, 1, 2 एंड 3। 4 से एक कम वैल्यू लेना है और कुछ नहीं। जो आप b अज्यूम कर रहे हो उससे एक वैल्यू कम लेना है, दैट इज योर रिमाइंडर। 0 से लेके b की एक वैल्यू कम तक। चलो अभी यहाँ पे लिख देते हैं, a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4q प्लस 0 और a इक्वल टू 4q प्लस 1 और a इक्वल टू 4q प्लस 2 और a इक्वल टू 4q प्लस 3। सो a इक्वल टू 4q एंड a इक्वल टू 4q प्लस 2 इज नॉट पॉसिबल because both are divisible by 2। 4q and 4q plus 2 both are divisible by 2, both are divisible by 2, so both are even integers। so any positive odd integer, so any positive
odd integer is of the form 4q plus 1 and 4q plus 3, 4q plus 1 and 4q plus 3. क्लियर हो गया प्रूव? वेरी सिंपल. नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम जैसा कुछ है. अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज and 130 badam burfis. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. Least area of the tray. What is the maximum number of burfis that can be placed in each stack for this purpose? What is the maximum number of burfis that can be placed in each stack for this purpose? Means एक ऐसा स्टैक है हमारे पास, बॉक्स ले लो, उसमें आपको ऐसे बर्फी अरेंज करनी है, एक के ऊपर एक, इसके ऊपर और लगा दी, बराबर. 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फी आपको एडजस्ट करना है. कैसे करना है कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक. हर एक स्टैक में कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी आना चाहिए. जब भी बोला है मैक्सिमम चीज हमें अरेंज करनी है, क्या बोला है? मैक्सिमम चीज हमें अरेंज करनी है तो हमें फाइंड करना पड़ेगा HCF. और अगर मिनिमम चीज हमें फाइंड करनी है तो हमें फाइंड करना पड़ेगा LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर. अगर मैक्सिमम फाइंड करना है तो HCF, लिस्ट फाइंड करना है तो LCM. मैक्सिमम HCF, मिनिमम LCM, ये आपको चीज याद रखनी है. उसी पे से आपको पता चलेगा कि कब HCF फाइंड करना है और कब LCM फाइंड करना है. जैसे यहाँ पे बोला है मैक्सिमम नंबर, आपको ये कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे देखो क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज. तो डायरेक्टली आप लिख दो HCF. किसका HCF? जो भी दो नंबर दिया हुआ है उसका HCF फाइंड करो. एक 420 और दूसरा नंबर क्या है हमारा 130. इसका हमें क्या फाइंड करना है? HCF. ऑलवेज मैक्सिमम बोला है तो आपको HCF फाइंड करना पड़ेगा. LCM वाला सम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. तो इन दोनों का HCF आपको फाइंड करना आता है. 420 बड़ा है दैट इक्वल टू 130. यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम करेंगे. सो 420 डिवाइडेड बाय 130, 13 3 39, 90, 30 रिमाइंडर बच गया, 3 से 30 शिफ्ट हो गया. 30 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम? 4, तो रिमाइंडर आ जाएगा 10. तो अभी शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे 30, फिर यहाँ पे 10 आ गया, 10 3 जा 30, रिमाइंडर आ गया 0. किससे मैं डिवाइड किया? लास्ट में 10 से डिवाइड किया. सो HCF ऑफ 420 एंड 130 दैट इक्वल टू 10. बस इतना आंसर लिख के नहीं रख देना है, आपको लिखना है पूरा स्टेटमेंट. मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पज, वो फाइंड करना था ना आपको. तो आपको लिखना है 10 मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक. कितनी बर्फीज हम अरेंज कर सकते हैं? 10. तो आपको वो लिखना है 10 मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक. दैट इज योर आंसर. क्लियर? एक और सम करते हैं. एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members. कितना है? 32 members. उसके पीछे उसको मार्च करना है. In the parade, the two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number? Again maximum आ गया, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ समझना नहीं है इसमें क्या बोल रहा है. मैक्सिमम नंबर मीन्स हमें फाइंड करना है HCF. किसका HCF? 616 एंड 32. बस इतना ही करना है. समझ में आ रहा है? वो बोलना ये चाह रहे हैं कि इन आर्मी कंडीशन में टोटल इतने मेंबर्स है 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स. इसके पीछे इनको मार्च करना है इन अ परेड. द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम. दो ग्रुप में उसको डिवाइड किया हुआ है विद द सेम नंबर ऑफ कॉलम. सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च. ऐसी कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हम बना सकते हैं? तो मैक्सिमम मीन्स HCF फाइंड करना. इन दोनों का HCF 616 इज ग्रेटर देन 32 आपको आता है. 616 इज इक्वल टू 32
इंटू दिस प्लस दिस, आप डिवाइड करोगे, जो आएगा वो यहाँ पे लिख के आप फाइनली HCF फाइंड करोगे। ये आपको खुद से करना है, जस्ट मैंने बता दिया। क्लियर? ओके, नेक्स्ट करते हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। ओके, तो अगेन assume A is any positive integer and B is equals to 3. So we can write A equals to 3Q plus R and R हमारा क्या होगा? लेस देन 3, 0, 1, 2। सही है, जो हमने आगे किया ये वाले सब में देखो कहाँ गया डिवीजन लेमा वाला, ये रहा 4Q plus 1, 4Q plus 3, 4 लिया था तो 4 में से एक निकाल के 3 कर तक गए हम, 8, 0, 1, 2, 3। वैसे ही यहाँ पे करना है आपको, बराबर। चलो A इक्वल टू हो गया 3Q, फिर हो गया A इक्वल टू 3Q plus 1 और एक हो गया A इक्वल टू 3Q plus 2 हो गया। ओके, अभी क्या बोला है? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर मीन्स इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। A स्क्वायर इक्वल टू 3Q स्क्वायर, A स्क्वायर इक्वल टू 9Q स्क्वायर, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 3m एंड 3m plus 1 मीन्स मल्टीपल ऑफ 3 में लाना है मुझे यहाँ पे। तो यहाँ से मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ, 3Q स्क्वायर हो जाएगा। सो वी कैन राइट इट एज अ 3m वेर m इक्वल टू 3Q स्क्वायर। ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया कि ये वैल्यू m है, तो ये 3m के टर्म में आ गया। ओके, अभी इसका मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, 3Q plus 1 स्क्वायर, 9Q स्क्वायर, A plus B होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। इन दोनों में से मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ, 3Q स्क्वायर प्लस 3 2 6Q प्लस 1, ये हो गया 3m plus 1 वेर m इक्वल टू 3Q स्क्वायर प्लस 2Q। आपको कैसे भी करके ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 3m एंड 3m plus 1। कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ से 3 कॉमन लिया, ऐसे कोई अलग समय कुछ और कॉमन लेके करना पड़े, बट आपको कैसे भी करके जो बोला है वो प्रूव करके देना है। यहाँ पे स्क्वायर कर दो, 3Q plus 2 स्क्वायर, मतलब प्रूव करके देना है। दैट मीन्स कि ऐसा नहीं कि कैसे भी करके प्रूव कर दिया, मेथड सही होनी चाहिए। A plus B होल स्क्वायर, A स्क्वायर 12Q plus 4। अभी मुझे 3m plus 1 मुझे 1 चाहिए। ओके, चलो मैं 1 ला देता हूँ, कैसे भी करके सेट करते हैं पीछे 1। 3 plus 1 4 हो सकता है, हाँ 4 की जगह पे मैंने क्या लिखा है 3 plus 1। अभी इसमें से मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ, 3Q स्क्वायर 4 12Q plus 1 plus 1, पूरा m हो गया 3m plus 1 वेर m इक्वल टू 3Q स्क्वायर प्लस 4Q plus 1। क्लियर? फिर आपको स्टेटमेंट लिखना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। हो गया प्रूव? क्लियर? एक और सम ऐसा करते हैं सेम। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अभी क्या करना है? क्यूब करना है, दैट इज 9m, 9m plus 1, 9m plus 8। तो अज्यूम A इज एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड B इक्वल टू, अभी 9 कंसिडर नहीं कर सकते, B इक्वल टू मैंने क्या कंसिडर किया 3, 0 1 2 3 में से ही कुछ कंसिडर करना है, जनरली हो जाएगा। तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? जैसे ये क्यूब वाला और स्क्वायर वाला होता है तब आपको 0 1 2 3 से अज्यूम करना होता है। ठीक है, ये हो गया अप टू 3, तो रिमाइंडर आपका हो गया 0 1 एंड 2। A इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? BQ प्लस R, रख दो इसमें वैल्यू। A इक्वल्स टू 3Q, A इक्वल्स टू 3Q प्लस 1 एंड A इक्वल टू 3Q प्लस 2। क्या करना है? क्यूब, A क्यूब इक्वल टू 3Q क्यूब, 27Q क्यूब, किसका मल्टीपल में लाना है? 9, सब में मुझे 9 चाहिए, तो 9 3 27, 9 कॉमन आ गया, 3Q क्यूब, 9m
हो गया। चलो इसका करते हैं, ए क्यूब इक्वल टू 3 प्लस 1 क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब। ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू द ब्रैकेट ए प्लस बी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू द ब्रैकेट ए प्लस बी। 27 क्यूब प्लस 1 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 इंटू 1 9 क्यू। आपको ये मल्टीप्लाई आना चाहिए। जो मैंने बेसिक एक्सपेंशन वाला वीडियो आपको पहले भेजा था वो अच्छे से देखना आप, तभी ये सब समझ में आएगा अगर आपका मैथ्स वीक है तो। इसको अरेंज करते हैं, 27 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। मुझे 9m प्लस 1 चाहिए, प्लस 1 पीछे है। हाँ चलो इसमें से 9 कॉमन ले लो। सो ए क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1 में आ गया, वेर m इक्वल टू दिस थिंग। इसका क्यूब करते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू द ब्रैकेट ए प्लस बी। 27 क्यूब प्लस 8 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू। अरेंज करो, 27 क्यूब 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। ओके, अभी मुझे 8 चाहिए पीछे। हाँ चलो 8 है, उसको कुछ अलग कर दो। इसमें से 9 कॉमन ले लो। हो गया 9m प्लस 8। क्लियर? हर एक जगह आपको लिखना है वेर m इक्वल टू 3q क्यूब, m इक्वल्स टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। सो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। क्लियर? ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर।